Welcome to Kholeshwar Genius CBSE School, Ambazogai. Admissions are open from class nursery to grade 8. Hurry up now, limited seats available. Good morning all of you, myself Sheikh Iqbal. Today we are going to learn the remaining part of our first chapter, It's Our Planet. Look at this picture, this is our planet. Yesterday we talked about it. The next is the environment, and then we'll learn about the percentage of water, or 70 or 30. Then we know about the oceans and the continents. Then we learn about the Asia continents, and then we know about the Africa continent. Today we are going to learn about the North America. It is the third largest continent and is bordered by the Arctic Ocean in the north, Atlantic Ocean in the east, and Pacific Ocean in the west. The whole of North America continent lies within the northern hemisphere, and parts of it lie in the Arctic Circle as well. जहाँ तक हम जानते हैं, सभी जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो महासागर है वो उसमें स्थित है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में हम देख सकते हैं आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है, और तीनों तरफ इसके भी पानी है। और एक आर्कटिक का सर्कल, ऐसा पूरा सर्कल एक आर्कटिक महासागर का यहाँ बनाया गया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद हम जो अगला महाद्वीप देखने वाले हैं उसका नाम है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ largest continent. North America and South America were earlier linked by the enthusiasm of Panama, but the Panama Canal separated the two continents. One of the densest rainforests of the world, Amazon rainforest, is located in South America. The continent is home to an unparalleled number of plants and animals, which makes its biodiversity rich indeed. यानी कि चौथे नंबर का महाद्वीप जो है वो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ये दोनों जुड़े हुए हैं पनामा नामक एक नदी पात्र की वजह से। ये दोनों जुड़े हुए थे और इसके वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। यहाँ पर अमेज़न का जंगल साउथ अमेरिका में दिखाई देता है। उसी के साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जानवर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको जैव विविधता युक्त ऐसा खंड कहा जाता है। यह हो गया साउथ अमेरिका। इसका बाद है अंटार्कटिका। Antarctica is the fifth largest continent and is located completely in the southern hemisphere, with the South Pole lying almost at the center of the continent. Antarctica is known as the frozen or white continent as it is permanently covered by a thick layer of ice. Not many people live here due to the harsh climatic conditions. The vegetation and the wildlife that is found here is also very less. जहाँ तक हम जानते हैं 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अंटार्कटिका है। ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर इंसान और जानवर की जो रहने की क्षमता है वो बहुत कम है। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या कम जानवर रहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पृथ्वी के आकार में अगर देखेंगे तो अंटार्कटिका पूरा दक्षिण ध्रुव के एकदम बीच में है, जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते या जानवर भी नहीं रह सकते। बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ इसको सफ़ेद कॉन्टिनेंट, सफ़ेद महाद्वीप या बर्फ़ाच्छादित या बर्फ़ से ढका हुआ ऐसा उसे कहते हैं। The sixth largest continent of the world is Europe. Europe had economical and industrially advanced nation of the world can be found here. Though small in size, Europe has a very rich history. The continents of Asia and Europe are joined and together from Eurasia. Asia is separated from the Europe by the Ural Mountains. जहाँ तक देखा जाता है यूरोप महाद्वीप साइज़ में छोटा है, लेकिन यहाँ की जो क्रांतियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। यहाँ की जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। और आशिया और यूरोप यूरल माउंटेन की वजह से, यूरल खंड पर्वत की वजह से वो अलग हुए हैं। उसी के साथ
एशिया और यूरोप मिलकर यूरेशिया ऐसा एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया था, लेकिन यूरल माउंटेन्स ने ये दोनों को अलग अलग कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. It is the only continent which is also a country. It is surrounded by water on all sides and located in the southern hemisphere, and therefore it is also called the island continent. देखो, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, एक देश भी है। इस देश को एक द्वीप भी कहा जाता है, जिसके चारों ओर पानी है और पानियों के बीच में ये महाद्वीप स्थित है। आज हमने सभी महाद्वीपों के बारे में जानकारी ली है। इस वीडियो को बार बार देखें और सभी महाद्वीपों के बारे में जानकारी लें, और ये 7 महाद्वीप हमें बहुत ही ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए। धन्यवाद।